Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम 3.25 तीसरा स्कंद 25 चैप्टर, श्लोका है 39 and 40। और ये इतना सुंदर अध्याय है, भक्ति का महिमा, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये एक ऐसा आम है जिसका कोई मतलब देयर इज नो सीड, केवल इतना सुंदर इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयायम् यनम् आत्मानम् अनुये चेह ये राज पशवो गृहा विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम् भजन्ति अनन्या भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Translation: thus, the devotee who worships me, the all-pervading Lord of the universe, in unflinching devotional service, gives up all aspirations to be promoted to heavenly planets or to become happy in this world with wealth, children, cattle, home, or anything in relationship with the body. I take him to the other side of the birth and death. हम इस पर्पट, जैसे प्रभु ने कहा बहुत बड़ा पर्पट है, तो हम आज केवल 2 देखेंगे और कल जो और 2 जो पैराग्राफ है और एक भक्त इसकी सेवा लेंगे, और एक जो टोटल 3 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ आज देखेंगे, 1 पैराग्राफ कल। तो ये पर्पट बहुत सुंदर है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, समय भी है हमारे पास, आज जल्दी शुरू है। Unflinching devotional service as described in these 2 verses means engaging oneself in full Krishna consciousness or devotional service, accepting the Supreme Lord as all in all. Since the Supreme Lord is all inclusive, if anyone worships him with unflinching faith, he has automatically achieved all other opulences and performed all other duties. The Lord promises herein that he takes his devotee to the other side of birth and death. Lord Chaitanya therefore recommended that one who aspires to go beyond birth and death should have no material possessions. This means that one should not try to be happy in this world or to be promoted to the heavenly world, nor should he try for material wealth
children, house, or cattle. How liberation is imperceptibly achieved by a pure devotee and what the symptoms are have been explained. For the conditioned soul, there are two statuses of living. One status is in his present life, and the other is our preparation for the next life. If I am in the mode of goodness, then I may be preparing for promotion to the higher planets. If I am in the mode of passion, then I shall remain here in society with activity. Activity is very prominent. And if I aim in the mode of ignorance, I may be degraded to the animal life or lower grade of human life. But for a devotee, there is no concern for this life or the next, because in any life, he does not desire elevation in material prosperity or higher grade or lower grade life. He prays to the Lord, my dear Lord, it does not matter whether I am born, where I am born, but let me be born as even as an ant in the house of a devotee. A pure devotee does not pray to the Lord for liberation from this material bondage. Actually, the pure devotee never thinks that he is fit for liberation. Considering this past life, considering his past life and his mischievous activities, he thinks that he is fit to be sent to the lowest region of the hell. In this life, I am trying to become a devotee. This does not mean that my many past lives I was 100% pious. That is not possible. A devotee, therefore, is always conscious of his real position. Only by his full surrender to the Lord, by the Lord's grace, are his suffering made shorter. As stated in Bhagavad Gita, surrender unto me and I will give you protection from all kinds of sinful reaction. That is his mercy. But this does not mean that one who has surrendered to the lotus feet of the Lord has committed no misdeed in his past life. But devotee always prays, for my misdeeds, may I be born again and again. But my only prayer is that I may not forget your service. The devotee has that much mental strength. And he prays to the Lord. May I be born again and again, but let me be born in the home of a pure devotee so that I may again get a chance to develop myself. Hare Krishna. So Prabhupada, मतलब केवल एक शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ऐसे दिव्य तात्पर्य लिख सकते हैं, और जो उनके अनुयायी है, जो प्रामाणिक है, तो वो जब एक तात्पर्य पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है. एक सामान्य व्यक्ति अगर इस तात्पर्य को पढ़ेगा तो बोलेगा ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मैंने पाप किए हैं, मैं यहीं पे रहूं, क्या फायदा फिर भक्ति करके, इस तरह का मनोरथ होगा. लेकिन जो शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्तों के संपर्क में है, वो जब ये पढ़ेंगे तो उनको भक्ति करने के लिए और प्रेरणा मिलती है. तो ये जो मनुष्य जीवन है, हम लोग 84 लाख योनि के बारे में जानते हैं. तो ये मनुष्य जीवन एक्चुअली एक रेलवे स्टेशन के जंक्शन पे आने के समान है. 84 लाख योनि भ्रमण करके जब मनुष्य का जन्म मिलता है, तो रेलवे जंक्शन में आप जानते हैं, जंक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेन है और आपको जहां भी जाना है आप वहां से वो ट्रेन पकड़ सकते हैं. नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, केवल एक ही स्थान आप जा सकते हैं वो ट्रेन, लेकिन जंक्शन में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है. तो उसी तरह से ये जो ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य जीवन, हम निर्धार कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी ट्रेन में हम जानते हैं अलग अलग डब्बे होते हैं, राइट. एसी कंपार्टमेंट होता है, स्लीपर कंपार्टमेंट होता है और जनरल कंपार्टमेंट होता है. तो एसी कंपार्टमेंट के पास वो ही जा सकता है जिसके पास एसी टिकट जिसने खरीदा है, स्लीपर में भी. और जनरल में क्या है, लास्ट मोमेंट भी आप टिकट खरीद के घुस सकते हो. ट्रेन छूटने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो आप वो 5 मिनट में आप टिकट खरीद के जो जनरल कंपार्टमेंट में घुस सकते हो. तो जनरल कंपार्टमेंट में हम जानते हैं कि बहुत असुविधा होती है, राइट. वो उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कितने लोग बैठते हैं उसमें, 300 लोग बैठ जाते हैं. इस तरह के होता है, असुविधा बहुत होती है. तो हम ज्यादातर, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम ज्यादातर, क्योंकि हमारे पिछले कर्म ऐसे है कि हम जनरल कंपार्टमेंट में घुसे हुए भक्त हैं. क्योंकि मतलब एसी में कौन बैठा है,
जिसने गए जन्म में काफी सारा अच्छा सुकृति या पुण्य कमाए, तो उनकी परिस्थिति अच्छी है, हाँ, वो मतलब धन, उनका जॉब, घर बार सब अच्छा है, तो वो आराम से भक्ति कर सकते हैं, वहां पे कोई टेंशन नहीं है। फिर स्लीपर में जो है उनका थोड़ा सा मतलब वहां पे भी अच्छी सुविधा है, लेकिन जनरल कंपार्टमेंट में क्या है, मतलब बहुत मतलब भौतिक स्थिति भी बहुत उतना अच्छा नहीं है। मतलब हर जगह मारा मारी है, मतलब बच्चों को पढ़ाना, आगे कैसे करना है, जॉब भी उतना अच्छा नहीं है, धन भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी भक्ति करना है। तो अधिकांश लोग हम जो जनरल, बहुत समस्या है, लेकिन हमको भक्ति छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन है, ये मनुष्य ना, दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षणु भंगुरा, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य, और क्षणु भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो भले ही कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, हाँ, कितना भी मतलब धक्का बुक्की, बैठने के लिए जगह नहीं, खड़ा रहना है, लेकिन अगर आप अंत तक इस पूरे ये जो पीड़ा को सहन करते करते बिना उतरे अगर आप उस डब्बे में बैठे रहेंगे, तो अंत में आप गंतव्य स्थान को पहुंच सकते हैं। अगर हम, तो हमको सहन करना है। और तो ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको अभी जो निर्णय है सही निर्णय लेना है, क्योंकि अभी प्रभुपाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये भौतिक जगत में जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उसको कोई आकर्षण नहीं रहता। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? तो शुद्ध भक्ति का अर्थ वही जैसे यहाँ पे तात्पर्य में लिखा गया है कि भक्त के पास कितना भी धन क्यों ना हो, उसके बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन जब वो अकाउंट को देख के उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं सुरक्षित हूँ। उसके पास महल जैसा घर होगा, सब सुविधाएं है, नौकर है, चाकर है, लेकिन उसको देख के उसको नहीं लगता कि मैं सुरक्षित हूँ, हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बैंक में करोड़ रुपए है, इतना सुंदर घर है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, हाँ, बच्चे भी मतलब सब बहुत अच्छे हैं, गुणवान बच्चे हैं, बीवी भी अच्छी है, हाँ, रिश्तेदार भी अच्छे हैं। तो ये सब देख के वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो जब घर में भी घुसता है तो कैसे घुसता है, ये सोच के मैं नौकर हूँ, ये जो घर है प्रभु ने दिया हुआ है, तो मुझे, और उस घर में वो किसको केंद्र बनाता है? भगवान को। तो हर चीज जब वो इवन अपना जो धन देखता है तो ऐसा बोलता है कि ये भगवान का है। तो हर चीज में वो भगवान के आश्रय में अपने आप को सुरक्षित मानता है, ना कि इस भौतिक उसके पास जो ऐश्वर्य है। ये एक फर्क होता है एक भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति क्या, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए आगे पढ़ाई के लिए इतना धन इकट्ठा करके रखा है, अभी मेरा घर का लोन खत्म हो गया है, घर मेरे नाम पे हो चुका है, जो भी आगे रिटायरमेंट के लिए मेरा ये सब इन्वेस्टमेंट, हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, अभी चलो थोड़ा भक्ति कर लेता हूँ। हाँ, तो ये ऐसा जो मनोस्थिति होता है, मतलब वो भगवान पे आश्रित नहीं है, वो अपने प्लान्स पे आश्रित है। मैंने सब अपना प्लानिंग किया है, तो अभी मुझे टेंशन नहीं है। हाँ, अभी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान दे ना दे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना किया है, तो इसको भक्ति नहीं कहते। तो जो भक्त होता है उसके पास कुछ है या नहीं है, वो 100% भगवान पे आश्रित रहता है। और जैसे यहाँ पे कहा गया, और भगवान से वो बिल्कुल कुछ मांगता नहीं, वो कभी भी मांगता नहीं, वो केवल और केवल अनन्य भक्ति करता है। और यहाँ पे जो कहते हैं ना, इवन जो भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर सा भजन है, कीटा जन्म होई यदि तुआ दास, बाहिर मुख जन्म न करे आस। मतलब भगवान, अगर आपके भक्त का जन्म, भक्त के घर में मुझे जन्म लेने का अगर सौभाग्य मिलेगा, तो मुझे एक चींटी का भी आप जन्म दे दो, मैं खुशी खुशी चींटी का जन्म आपके भक्त के घर में, लेकिन मुझे मतलब चार मुख वाला ब्रह्मा बनने का कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा ये भजन है, मानस देहो गेहो जो किचु मोर, अरो पील तुआ पदे नंद किशोर। ये है भक्त की मनोस्थिति। हाँ, मेरा मन, मानस, देह, मेरा ये देह,
देह जो भी आपने मुझे दिया है, इस शरीर को दिया है, शरीर के संबंध में ये मन, बुद्धि, ये परिवार, ये ऐश्वर्य, जो कुछ भी, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, मैं आपके चरण कमल में इसको सौंपता हूं। तो एक्चुअल ये है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम गरीब की तरह हाँ शुद्ध भक्ति करना है, तो ये सब छोड़ो, कहीं पे एक छोटा सा झोपड़ी बनाओ और भगवान को दिखाऊंगा, देखो भगवान मैं कितना वैरागी हूँ। हाँ मतलब सब कुछ होते हुए भी मैं यहाँ पे झोपड़ी में, जैसे अभी कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास की बहुत महिमा चल रही है कि कुछ लोग व्रत लेते हैं कि मैं क्या मीठा नहीं खाऊंगा, मैं जमीन पे सोऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए अगर कर सकते हो तो तपस्या। लेकिन ये महिमा नहीं है कार्तिक मास की। कार्तिक मास में हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करना है, राइट, और प्रगाढ़ करना है। क्योंकि अगर हम भक्ति क्या है नहीं पता चलेगा और इतना सारा तपस्या करेंगे, तो कार्तिक मास खत्म होते होते भक्ति की जगह हमारा क्या बढ़ेगा। तो उस दिन मैंने एक प्रश्न डाला था ग्रुप में कि किस किस के पास कार है और कौन सा कार है। तो एक्चुअली हर किसी के पास कार है और उसका उत्तर था कौन सा कार है हमारे पास, सबके पास मारुति हायुंडई नहीं, हमारे पास एक अजीब कार है जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है भक्ति के मार्ग पे और वो है अहंकार। तो अगर हम बहुत तपस्या करेंगे लेकिन भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान को क्या एक्चुअली प्रसन्न है, इसका अगर हमको ज्ञान नहीं होगा, ये सारा तपस्या भक्ति की जगह हमारा अहंकार बढ़ा देगा। राइट। तो इसलिए जिसके पास भक्ति के संस्कार नहीं है उसका क्या होता है, उसके पास उसका अहंकार बहुत बढ़ जाता है और जिसके कारण हमारी पूरी भक्ति जीवन बेकार हो जाता है। तो जब भी हम कार खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कौन सा मॉडल, तो ये जो अहंकार है इसका मॉडल है मिथ्य अहंकार। जैसे मारुति, सुजुकी, ये सारे कंपनी के नाम है ना, तो ये अहंकार कौन सा मॉडल है, मिथ्य अहंकार। तो अगर हम सही से नहीं पता, हमको ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, हमारा ये अहंकार वाला जो बहुत बढ़ जाएगा। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति है कि भगवान को प्रसन्न करना। हाँ, भले ही आप कार्तिक में आपने मीठा खाया बोल के कोई आप अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन आप केवल मीठा खा रहे हो लेकिन हृदय में अभी भी कड़वाहट है, क्या फायदा। बाहर से आपने मीठा खाना छोड़ दिया और हृदय में बहुत कड़वाहट है, बहुत आपके अंदर, मतलब भक्तों में दोष देखना, भक्तों का निंदा करना, तो फिर क्या फायदा। बाहर का आपने मीठा छोड़ के अंदर आपको मिठास लाना है, हृदय में मिठास लाना है, तभी भक्त जो, और वो मिठास जब आप और भक्तों की गुणगान में, सही गुणगान, केवल ऐसा नहीं कि वो ये भक्त को थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, किसी को मतलब चने की झाड़ पे चढ़ाने वाला गुणगान नहीं, सही में हृदय से। हाँ, क्योंकि जब हम भक्तों का हृदय पूर्वक जब गुणगान करते हैं तभी क्या होगा, वो हमारे अंदर के अनर्थ, मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज शुड बी जेन्युइन, मतलब उनके अंदर आपको गुण देखने हैं पहले। अगर मान लो कोई बेचारा जिसका आवाज उतना अच्छा नहीं है, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से कोई अच्छा गा नहीं सकता, मतलब बेसुरा, भौतिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, भाव में कोई कमी नहीं है, भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं, लेकिन उसका मतलब है ही ऐसा कि वो अच्छा नहीं, और आप उसको जाके कहेंगे प्रभु जी आप क्या गाते हो, क्या गाते हो। हाँ, मतलब हमको कोई उसमें रुचि नहीं है वो कीर्तन, हम लोग सोचेंगे अरे कब कीर्तन बंद करेगा, इसको गाने किसने दिया। और फिर भी आप जाके ऐसे भक्तों को अगर आप प्रशंसा करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा, अरे मैं उतना अच्छा नहीं गाता मुझे पता है, और ये मुझे खाली बोल रहे क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो, मतलब मतलब पूछ रहा है क्या, ये क्या गा रहे हो तुम क्यों गा रहे हो। तो उसको भी समझ में आएगा। तो इस तरह का प्रशंसा नहीं, प्रशंसा मतलब सही में आप उस भक्त के साथ रह के जब आप उसके अंदर अच्छे गुण देखते हो और उस गुण का जब आप गुणगान करते हो, दिस इज रियल भक्ति। तो इस तरह से हमको जो है समझना है कि शुद्ध भक्ति क्या है। जैसे
एक बार हम लोग जब जन्माष्टमी में डोनेशन कलेक्ट करते हैं ना, तो एक आदमी बोलने लगा मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो क्या बोला उसने कि हमारा वो बीच में जब प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था इस्कॉन में, तो लाइफ मेंबरशिप का एक कंसेप्ट रखा था, लक्ष्मी धनराशि, क्योंकि टेम्पल वगैरह बनाने के लिए वो काम आता है। तो मैं लाइफ मेंबर हूँ, मैंने 50,000 दिया है। तो एक प्रभु जी ने उन्होंने कहा कि प्रभु ये इस्कॉन कोई क्लब नहीं है जहाँ पे आप मेंबर हो कह रहे हो। हम चाहते हैं कि आप हमेशा कृष्ण को रिमेम्बर करो। आप मेंबर नहीं चाहिए हमको। वी वांट, ये सारा जो हमने बनाया है ये मेंबरशिप के लिए नहीं है, क्लब नहीं है। अवर मेन अपना उद्देश्य क्या है, आप मेंबर मत बनो, आप हमेशा कृष्ण को रिमेम्बर करो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, मतलब भगवान कहते हैं ना हमेशा मेरी स्मरण करो। और आप जो लाइफ मेंबर बोल रहे हैं ना, तो आप अपना लाइफ दे दो, आपका जीवन दे दो कृष्ण के लिए। ये एक्चुअल है। कोई है क्या यहाँ पे भक्त जिनको आपके मंदिर में कहा है कि प्रभु जी आप अक्टूबर में ज्वाइन किए थे ना, आपका अभी मेंबरशिप रिन्यू करना है, आपका भक्ति मेंबरशिप, कोई है क्या टेम्पल? नहीं, ये हमारा क्लब थोड़ी है कि हम मेंबरशिप का रिन्यूअल वगैरह। सो रियल लाइफ मेंबर क्या होता है, जो अपना लाइफ कृष्ण के लिए अर्पण करता है और हमेशा कृष्ण को रिमेम्बर करता है। तो दिस इज रियल लाइफ मेंबरशिप। तो ये है एक्चुअल शुद्ध भक्ति। तो और भक्त का यहाँ पे प्रभुपाद भाव लिख रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति में जब हम आते हैं और जब हमारे अंदर ये पूरा कलमश साफ हो जाता है ना, तो सही में एक भक्त का हृदय में वो सही में उसको लगता है कि मैं कितना, मतलब मैंने दुष्ट कर्म किए हैं भक्ति में आने से पहले और पूर्व जन्म में, मतलब मैंने कितने पाप किए हैं, फिर भी भगवान मुझे ये मौका दे रहे हैं। अभी आप देखिए ये जो दामोदर मास और ये जो मार्गशीर्ष मास, ये जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये सब क्या है, ये भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। हम लोग इस भौतिक जगत में इतने आकर्षित हो चुके हैं, तो भगवान ऐसे ऐसे मतलब चीजें बन हम लोगों के लिए, हमको वापस खींचने के लिए अभी ये सारा जो प्रलोभन है, आप एक माला करो कार्तिक मास में आपको इतना फल मिलेगा, ये सब क्या है, भगवान एन केन प्रकारे न, क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है ना, कहीं पे भी बोर्ड लग जाए कि एक खरीदने पे 2 फ्री मिलता है, अगर वो हमको चाहिए भी नहीं तो हम लोग खरीद लेंगे, फिर वो घर में लाके सड़ने दो, लेकिन हमको अच्छा लगता है। हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैंने 1 रुपए जो 10 रुपए के चीज है वो मैंने मतलब 20 रुपए होने वाला था, मैंने 10 रुपए में 2 चीजें खरीद ली। तो ये हमको लगता है मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो इसी तरह से भगवान को पता है इन लोगों को कैसे कि किस तरह से इनको जाल बिछाना है। तो एक साधारण व्यक्ति भी अगर आप उसको बोले प्रभु जी माता जी अभी ना कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में पता है आप केवल 1 माला कीजिए, उसको आपको 16 माला करने का आपको लाभ मिलेगा। आप केवल 1 तुलसी का पत्र भगवान के चरण कमल में अर्पण कीजिए, 100 गाय दान करने का आपको फल मिलेगा। तो जब ऐसे सब सुनते हैं, जो ऑलरेडी जो कर्म कांडी, जो जिनका पूरा यही चलते रहता है कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस, किसमें नफा है किसमें नुकसान है, तो ये लोग जल्दी पकड़ लेंगे, उनको भक्ति का कोई लेना देना नहीं। ये सुन के वो लोग जल्दी, हाँ तो क्या करना है, किसको करना है, हाँ ये लोग, ये दामोदर यशोदा दामोदर का जो फोटो है ना, ये आप घर पे रखिए, रोज सुबह शाम को दिया दिखाइए, हाँ ये मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है, इनको तुलसी अर्पण कीजिए 100 गाय दान करने के बराबर है। हाँ, तो ये जब सब हम सुनते हैं, वो सुनते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, तुरंत मान जाते हैं। अभी भक्ति का उनको लेना देना है नहीं, उनका केवल क्या है, हाँ ये सब करने से ऐसा है कि हाँ। लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, भले ही भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेरे भक्त ने कहने का मान तो रखा, उसने कर तो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जीवन में उनका भक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, उनका अकाउंट ओपन करते हैं, भक्ति अकाउंट, और फिर धीरे 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 करते करते वो लोग एक दिन, हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे, अपने पता नहीं कितने कितने करोड़ों जन्म में हमने भी दामोदर को दिया दिखाया रहेगा, किसी भक्त के सामने हमने ये किया। तो उसी तरह से जैसे एक कहानी आती है
जो एक बार ये जो कार्तिक मास में आपने सुनी रहेगी कहानी, लेकिन बार और एक बार सुनने से थोड़ा मेमोरी फ्रेश हो जाती है। तो एक चूहा था, तो वो उसको क्या पता कार्तिक मास क्या है, भगवान दामोदर कौन है। तो एक सब लोगों ने दिया दिखा के, दिया जल रहा था और हम जानते हैं घी, हम घी का दिया दिखाते हैं। तो उस चूहे ने देखा कि दिया जल रहा है और बाजू में घी है, तो वो चूहा जो है उस घी को खाने के लिए जाता है। और जब वो घी खाने को देखता है तब वो जो बासी है उसके दांत में अटक जाती है और वो जल जल रही है अभी भी। तो वो अटक जाती है और धीरे धीरे वो आग जो है चूहे को मतलब पूरे शरीर को, और उस वो इतना उसको मतलब पीड़ा होती है, मतलब अभी उसका शरीर जलना शुरू हो गया, वो ऊपर नीचे आगे पीछे भाग रहा है इधर उधर। तो इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है भगवान के सामने, मतलब भगवान के जो अर्च विग्रह के सामने। अभी भगवान ने उसको क्या, उसको उसका क्या अर्थ निकाला कि ये चूहे ने पहले तो मेरी आरती की, मतलब वो जो दिया उसके दांत में अटका था, तो दिया जल रहा था, तो पहले तो उसने मेरी आरती की, और केवल आरती नहीं की, मेरे सामने उसने नृत्य किया, मतलब मेरे सामने उसने नृत्य किया मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो सोचिए भगवान कितने दयालु है। अभी भगवान को नहीं पता क्या वो चूहा तो केवल वो घी खाने के लिए आया था, अपना अपना परमार्थ, अपना स्वार्थ के लिए आया था। लेकिन भगवान इतने दयालु है, उस स्वार्थ को उन्होंने भक्ति का उसको क्रेडिट दे दिया। उसने पहले मेरी आरती की और मुझे प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया। अब वो नृत्य थोड़ी कर रहा था, हाँ वो तो मतलब उछल कूद रहा था कि शरीर में आग लगी है, किस तरह से बचूं। तो उस तरह से भगवान हमको इतना मतलब कृपा, इतना कृपा का पात्र बनाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक संवाद है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीला हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, इतने ये लोग मतलब मंद बुद्धि है, इनको भक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, और कलयुग में हरि नाम ही केवल आधार है, तो कैसे होगा। तो फिर हरिदास ठाकुर बताते हैं कि भगवान मतलब आप इतने कृपालु है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे एक हमको कहानी पता है जहाँ पे एक मुसलमान जो मल मूत्र त्याग रहा था और पीछे से एक सुअर आके उसको मारता है, और क्योंकि सुअर उनके धर्म मतलब वो जो पालन कर रहे हैं उस उनका श्रद्धा है उसमें सुअर बहुत ही उनके लिए एक अनहोली एनिमल है। तो वो जोर जोर से क्या चिल्लाता है, हराम हराम हराम, और उसको क्या फल मिलता है, राम का नाम लेने का वो फल मिलता है। और जब वो त्याग देता है अपना शरीर, उसका उद्धार हो जाता है। क्यों, उसने एक्चुअली क्या बोला था, हराम, लेकिन भगवान ने उसको क्या उसका ये दिया, राम बोलने का उसको बेनिफिट दिया। इतना ही नहीं, उसमें आगे लिखते हैं अगर कोई एक दो शब्द है, हलम रिक्तवा, हलम और रिक्तवा, इसमें कोई दूर दूर तक आपको हरे कृष्णा या भगवान का नाम का कुछ अनुभव हो रहा है क्या? हलम और रिक्तवा ये दो शब्द है, हाँ नहीं ना। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान इतने कृपालु है, अगर किसी ने ये दो शब्द भी बोले, हलम और रिक्तवा, तो भगवान क्या करेंगे, वो हलम का ह निकालेंगे और रिक्तवा का री निकालेंगे और बोलेंगे इस व्यक्ति ने हरि बोला। सोचिए कितना भगवान दयालु है इस कलयुग में। तो हलम का ह और रिक्तवा का री, तो बोलेंगे इस व्यक्ति ने हरि बोला। तो उसी तरह से एक बार अमेरिका में एक ये आया था ना आदि दैविक हरिकेन, हरिकेन बोल के एक, जैसे सुनामी, सुनामी तो सुना रहेगा आपने। तो उसी तरह से वहां पे एक बहुत बड़ा आई थिंक तूफान आया था जिसका नाम था हरिकेन। तो उस वक्त जिसने उस हरिकेन 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 जो उसके ऊपर चर्चा की है, तो उसको भी हरि बोलने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख हो रहा है। तो इस कलयुग में भगवान इस तरह से मतलब इससे ज्यादा और डिस्काउंट क्या मिल सकता है। जो हरियाणा में रहते हैं, यहाँ हमारे भारत में एक प्रदेश है हरियाणा, तो सोचो जो बार बार हरियाणा बोलेंगे तो पांडुरंग क्या बोलेंगे, हाँ ये मुझे बुला रहा है, हरी आमच्या घरी पण या ना। हरियाणा। हाँ तो पांडुरंग को मराठी आती है ना। एक्चुअली हर भगवान को हर शब्द मतलब लैंग्वेज आता है, लेकिन क्योंकि हरियाणा मतलब ये थोड़ा मराठी होता है, तो हमारे जो विट्ठल रुक्माई रुक्माई को बोलेंगे विट्ठल चलो चलो ये हमको बुला रहा है, हरी आमच्या घरी या ना। तो इस तरह से मतलब
आप मतलब सोच नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं। मतलब हमारी मंद बुद्धि, उनको पता है कि इसको भक्त बनाना और आध्यात्मिक जगत लेके जाना मतलब वो एक बंदर को स्कूल में बिठा के उसको डिग्री पास कराना जैसे है। तो मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर भी ऐसे हम जैसे मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, वी केम फ्रॉम मंकीज। एक बार प्रभुपाद को एक ने चैलेंज किया, वी केम फ्रॉम मंकीज। तो प्रभुपाद ने बोला वेर इज द क्वेश्चन, वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। तो प्रभुपाद ने बोला वेर इज द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, यू आर स्टिल मंकीज। तो ये है हमारे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला ये आपका परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं, आप अभी भी बंदर हो। यू आर स्टिल मंकीज, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन। तो इस तरह से, तो ये जो है भगवान, इसीलिए ये भक्त जो है, एक शुद्ध भक्त जब प्रभुपाद जैसे और हमारे आचार्य जैसे शुद्ध भक्तों के जब संग में आते हैं, उनका जब ये पूरा जो लिखा है उन्होंने उसको पढ़ते हैं, तो अंदर से इतना शुद्धिकरण होता है, इतना शुद्धिकरण होता है कि फिर उसको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं आध्यात्मिक जगत जाने का। मैं एक तो मैंने भगवान को द्वेष करके मैं यहाँ पे आया, अभी तो मैं वहां पे जाने का मुझे योग्यता नहीं है। तो इस तरह से मतलब शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं। शुद्ध भक्ति में आपके जीवन में कितना भी समस्या क्यों ना आए, कितना भी पीड़ा क्यों ना आए, आप कभी भी भगवान की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। आप केवल केवल मुस्कुराएंगे और कहेंगे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी कितना रक्षा कर रहे हो। इससे भी बुरा होना था मेरा जीवन, लेकिन आपके एक अनुग्रह से, आपकी कृपा से मेरा जीवन मतलब ये जो दुख आ रहे हैं और आपका कृपा है, इसकी वजह से मैं इसको सह कर पा रहा हूं, या इसका मैं इसको आई एम एबल टू फेस इट। ये होता है एक शुद्ध भक्त का, एक नॉर्मल भक्त नहीं। जैसे अलग अलग प्रकार के भक्त है, जो तमोगुणी होते हैं ना, तो उनका उद्देश्य या उनका मोटिवेशन भक्ति करने का क्या होता है, भय। हाँ, जो तमोगुण के स्तर पे वो भक्ति क्यों करता है, उसको भय है, अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरी बीवी भाग जाएगी, मेरे बच्चे मेरा नहीं सुनेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो डर डर के भक्ति करता है। टायर भी पंचर हुआ ना, वो डर जाता है, बोलता है भगवान मैं अगली बार 2 नारियल चढ़ाऊंगा, प्लीज ऐसा टायर वायर पंचर मत कराओ मेरा। तो हर चीज में उसको लगता है भगवान कुछ कर रहे या देवी देवता कर रहे, डर डर के भक्ति करता है। ये है तमोगुणी। जो रजोगुणी होता है वो क्या है, ही विल ऑलवेज थिंक प्रॉफिट एंड लॉस। जो रजोगुण के स्तर पे होता है, 2 नारियल चढ़ाने से क्या मिलेगा, 3 नारियल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये देवी देवता का भक्ति करेगा तो क्या मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से उसका पूरा, अगर आप पहला अगर अध्याय देखोगे भगवत गीता का, तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, लेकिन जस्ट एक, तो अर्जुन का भी वही मनोस्थिति था, मैं मारूंगा तो क्या होगा, सब लोग मर जाएंगे तो मैं किसके साथ अपना ये जो विक्ट्री शेयर करूंगा, और अगर मर गए तो मुझे पाप लगेगा। तो ये होते हैं रजोगुणी जो स्तर पे होते हैं, हमेशा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस, एकदम बनिया की तरह। हाँ, और तीसरे होते हैं जो सत्व गुण के स्तर पे होते हैं, वो क्या है, वो भक्ति करते हैं कर्तव्य के स्तर पे, आउट ऑफ ड्यूटी। हाँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो मेरे पालनहार है, शास्त्र में लिखा है कि वही हमको ही मेंटेन्स, तो एज अ ड्यूटी वो करते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर है जो सत्व गुण से भी दिव्य स्तर, इट इज आउट ऑफ लव, केवल और केवल प्रेम, भगवान आउट ऑफ लव, कुछ भी कोई अपेक्षा नहीं है, अनन्य। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं अनन्य भक्ति, यहाँ पे इस श्लोक में आता है भजन्ति अनन्य भक्त्या। हाँ, तो ये जो अनन्य भक्ति जो करते हैं, दिस इज रियल डिवोशन, जो हमको इस स्तर पे आना है। हाँ, अभी भी हम लोगों को देखना है हम कौन से स्तर पे है, हम डर डर के कर रहे हैं क्या। हाँ, कभी कभी डरते हैं ना कि कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो हमको लगता है अरे मैंने देवी देवता का जब से कृष्ण भक्ति की है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उसको और किसी देवी देवता का नहीं करना है, तो मैंने छोड़ दिया। अभी ये जो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रहे, कहीं कोई ये माता तो गुस्सा नहीं हो गई, या ये भगवान या ये देवता, हमको लगता है ना। तो ये भी स्तर मतलब इट इज ए तमोगुण। जो भक्त होता है उसको किसी प्रकार का वो भय नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब उसको पूरा श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति कैल श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। लेकिन हमको उस लेवल पे आने का कृपा मतलब प्रयास करना चाहिए।
और यही है शुद्ध भक्ति। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल केवल, और उसके जीवन में जब भी कुछ अच्छा भी होता है ना, वो इतना भगवान के प्रति इतना उसको कृतज्ञ, भगवान ये आप कर रहे हैं, आपकी कृपा से इतना सब हो रहा है, आपकी वजह से मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जब कुछ बुरा होता है तभी बोलते हैं भगवान थैंक यू वेरी मच, इससे ज्यादा मेरा मैंने इससे ज्यादा पाप किए, इससे ज्यादा मेरा बुरा होना था, आपने तो मतलब कुछ भी मतलब जो 1 रुपए का जो इफेक्ट होना था आपने उसको नए पैसे में निपटा दिया। तो इस तरह से तो ये है शुद्ध भक्ति। और एक्चुअली प्रभुपाद हमको यही देने आए हैं। हम जो ये सारा जो हरि नाम का जप कर रहे हैं, ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए। देयर इज नो अदर। मतलब अभी भी मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक मतलब बैठ के लेक्चर देना ना मतलब बात करना बहुत बोल बच्चन बोलते ना, बहुत इजी है। लेकिन जब अगर मैं अकेला ऐसा कंटेम्पलेट करूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ भक्ति, तो मुझे पता चलेगा मेरे अंदर इतने सारी इच्छा है। लेकिन वो पता चलना भी जरूरी है। वो पता करते करते हमको जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, ये मतलब इनके पास इतना ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य था आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन तभी भी वो आसक्त नहीं थे, जब था तब भी आसक्त नहीं थे, और जब उनको छोड़ दिया उन्होंने, सब छोड़ के भगवान के भक्ति में है, तब भी उनको कभी भी एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया अरे कहीं गलती तो नहीं की मैंने, ये सब छोड़ के वृंदावन में बाबा जी बन के हम लोग पेड़ के नीचे कहीं गलती तो नहीं की, कभी भी नहीं। तो ये है शुद्ध भक्ति। तो इस स्तर पे हमको आना है। तो शुद्ध भक्ति है कि उसके पास कुछ ऐश्वर्य नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे भक्ति समाज में ऐसे ऐसे भक्त है जिनके पास इतना ऐश्वर्य आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मेरे पास ये सब है, अगर कल मैं कृष्ण भक्ति छोड़ भी दूं तो मेरे पास है बाबा ऐश्वर्य, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कल कृष्णा मुझे लात भी मार के निकाल देता है ना, तो ये जिंदगी आराम से जीने के लिए नहीं, वो कभी नहीं सोचता। वो उसका पूरा जो आश्रय है कृष्ण के ऊपर है। वो ना अपने बंगले को देख के खुश होता है, ना अपने बैंक बैलेंस को देख के खुश होता है, ना अपने कार को देख के खुश होता है। वो कब खुश होता है, जब अपने वो हरि नाम कर रहा है तब खुश होता है, भक्तों का संग कर रहा है तब खुश होता है, प्रसाद ले रहा है तब खुश होता है, यात्रा में जा रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, ये चीज में उसको खुशी मिलती है। और जो अपने घर में आता है तो ऐसा नहीं देखता क्या आलीशान मकान है, नहीं, वो आके अपने कोने में सो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मतलब लोगों के पास सोने के लिए भी जगह नहीं, और आपने मुझे इतना बड़ा दिया है, ये सब आपका ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उसका मनो मनो मतलब उसका माइंडसेट होता है। इज नेवर, किसी चीज में उसको ऐसा नहीं लगता है। हाँ, और जब वो मंदिर भी जाता है वो ऐसा नहीं सोचता है अरे ये क्या है, मतलब ये सब छोटे मोटे भक्त है, भक्त मतलब मैं, उसको ऐसा कभी नहीं लगता। इनफैक्ट उसको लगता है कि ये लोग भक्त है और मैं ही हूँ जो एकदम नालायक हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास, ना भक्ति है, ना श्रद्धा है, ना आसक्ति है, ना रति है। हाँ, मुझे इनके जैसा बनना है। तो जिसका हमेशा ऐसा रहता है ना कि और हमेशा भक्ति में प्रगति करनी है, जो हमसे जो उत्तम मतलब हमसे जो एडवांस्ड भक्त है उनका संग करना है हमको। अगर हम अपने ही लेवल या अपने नीचे वालों के साथ करेंगे ना, तो इट विल बी, हम लोग कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। वो इट विल बी लाइक कंफर्टेबल भक्ति जैसा। हाँ, ये भी सोला करता है, मैं भी सोला करता हूँ, ये भी कभी कभी आता है मंगल आरती, मैं भी कभी कभी आता हूँ, तो सब ठीक चल रहा है। तो विल नेवर प्रोग्रेस। हम लोग प्रोग्रेस कब करोगे, जब हम देखेंगे कि अरे ये मतलब इतने शुद्ध भक्त है, कितना एडवांस है, मुझे इनकी तरह बनना है, इनका संग करना है। तो वी शुड, अगर सही में भक्ति में प्रगति करनी है, शुद्ध भक्त बनना है, तो हमसे जो एडवांस है उनका हमको संग लेना है। वो जो मतलब हमसे जो और ज्यादा जो भक्ति कर रहे हैं उनका संग लेना है। एंड देन धीरे धीरे हम में वो गुण आएंगे, उनकी कृपा से, उनके संग से। तो फिर हम ऐसे शुद्ध, जो यहाँ पे प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है, ये तात्पर्य एक्चुअली लेक्चर है, इसके ऊपर और कुछ बताने का जरूरत नहीं, इतना क्लीन एंड क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। प्रभुपाद का हर एक शब्द ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें मतलब इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी इसको जरूर पढ़िए, इस तात्पर्य को, एंड लेट अस ट्राई टू बी दिस। मतलब ये एक्चुअली ये है, इसमें कोई भी मतलब प्रभुपाद हमारा मॉरल डाउन नहीं कर रहे, प्रभुपाद एक्चुअली हमको प्रेरणा दे रहे शुद्ध भक्त बनने का। तो मैं कह के यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।
और सभी को इन एडवांस कार्तिक मास की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, चरणवत प्रणाम। प्रभुपाद की।